My name is Dr. Rakesh Chaturvedi. I am working as an Associate General Manager in Fire Safety at Adani Port Special Economic Zone, Mundra. So today's topic is fire load. So your unit 4 and 5 is there. Uh, as per NFPA, as per NBC, and what are the requirements, we will go one by one. So today you can say it will be a introductory part of fire load. Later on we will go more technically with this entire topic. So content of this course which I have designed, these are introduction of fire load, need of assessing fire load, use of fire load calculation, definition of fire load as per NBC 2016, fire load as per NFPA 557, fire load classification, building classification as per NBC, fire zone classification as per NBC, type of construction with respect to fire zone and fire resistance. Am I audible, huh? Yes, sir, you are audible. You are audible. Yes, sir. Clear. In between, if somebody want to ask anything, he can stop me, or we can go for, you can say, about 40 minutes. Later on, 5 minutes, we can have a interaction session, so that today evening might be more fruitful to you all. Okay. So, introduction. Increasing of engineering solution need to identify, characterize, and quantify design fire, the ignition, heat release, and flame temperature of design fire depend on the weight and arrangement of the combustible material. The fire load calculation formula provide a basis of fire risk assessment, fire intensity, and probable duration in case of fire incidents. So these are the few basic what you are looking for fire load calculation and how it is going to help you. So we can say fire load calculation start from planning, designing, construction, later on equipment and operation, and again maintenance. These are the few part. It is not like that you have done all things. Now you want to have a fire load calculation, even though few people are doing for one time, if they have not done, or they might be ignorance to that point, or they might not be aware of that point. English is okay, or you want to have in Hindi? Anybody? Okay, sir. English is okay. English is okay na for all? इंग्लिश और हिंदी बोथ आर ओके. ओके ओके. गुजराती मेरे को समझ में आता है, बोल नहीं पाता हूँ, तो गुजराती की डिमांड मत करिएगा आप. ओके. So the fire intensity and duration depend on the fire load. अब कोई भी फायर आप देखते हैं, कोई भी फायर किसी भी मटेरियल में लगी है तो कितनी देर तक वो फायर रहेगी, सस्टेन कितनी देर तक करेगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, व्हाट इज विल बी द इंटेंसिटी ऑफ दैट फायर, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द combustible material and fire load, what type of material involved in fire. If you can see few of the fire expertise people can understand by seeing the color of smoke, what is burning. That is a beauty of that technical person, or the person who can understand. You can identify if dense black smoke is there, so it is easy to identify there might be a hydrocarbon fire. So such type of different type of fire mode, color, you can identify which type of material by smell also. You can smell and you can see the propagation of flame. It is also a sign, symptom of what is the combustible material is on fire. And on the heat release rate, there is a very important factor we will discuss during this fire load calculation, that is heat release rate. This is related to the composition of the fire load, and it is exposed surface, the fresh air supply. Heat release means there is a transaction. You can see there is a fire, hot air will come out if it get the
space to vent out, or it might be remain within that confined area, and you can see the effect of such type of phenomena. Sometimes you can say flashover, backdrop. That is the reason, because most of the combustible reaches at their auto ignition temperature in confined area. But if you can do suddenly venting, that is also a problem. Ventilation is a art. Nobody can say, okay, break this window, do this, we can have a ventilation. No. When you have to ventilation, how much ventilation is required? What is the wind direction at the point when you are doing forcefully ventilation? These are the critical factor you need to understand. Verification of fire load is also an important element of any fire safety audit. Everybody coming to your industry, or whenever after becoming an auditor, you will ask a single question to the occupier of that particular industry. What is the fire load of your industry? Do you have a calculation of fire load? Have you done this activity from a certified person? Who has done? What are the recommendation of fire load calculation? Can you show me? Yeah, or can you show us? And what are the after a recommendation, what you have done to improve your system? These are the requirement. But sometimes what happen, if you are not going to have a fire load calculation, then with an expertise guy, then what happen, you will get wrong perception, wrong result. They will lead you wrong direction. Suppose I am giving you a very classic example. If you go to Factory Act, Gujarat Factory Rule 1963 66A, I am not covering that part because it will create a confusion, but I am sharing what the fire load calculation meaning in Factory Act, that how much water you require to fight a fire. That is very good. It is needed. It is required. But how they are calculating A plus B plus C plus D divided by 20? And what is the outcome? It is not mentioned there. What they have simply given, this much of trolley mounted Taylor pump required, this number of required pump, but they have not specified the mobile firefighting vehicles requirement, capacity requirement, reservoir. It is okay, you can find this much of water is required. That is fine. But how you are going to use that water to control the fire? So the other part, the other way we are calculating the fire load calculation, it's depend upon the combustible material. Combustible material and calorific value and the floor area in square meter. So verification of fire load is also an important element of any fire audit. Till now, any query or any doubt to anybody? Am I audible? Yes, audible. Okay. No doubt, sir. Need of assessing fire load. More or less I have spoken, but we will go in detail. In order to characterize fire risk assessment, which provide detailed information on fire load, is very important. The fire load survey or calculation of fire load is the direct way to collect associate information which can provide a basic for the design fire. आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडस्ट्री कौन सी क्लास की है, या कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग किस कैटेगरी में फॉल होगी. वो कैसे पता चलेगा बिल्डिंग कौन सी कैटेगरी में फॉल होगी? इट्स डिपेंड अपॉन द यूज. आप किस पर्पस के लिए उस बिल्डिंग का डिजाइन करना चाहते हैं, आप बिल्डिंग क्यों बनवाना चाहते हैं, क्या काम करेंगे उसमें, व्हाट आर द एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू इन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर. That's why the classification of building as per NBC. Can anybody tell what are the classification? बहुत से FSO भी आपके करके आए हैं, तो classification of building क्या है बता सकते हैं आप? Anybody? Low hazard, moderate hazard, high hazard.
Okay, that is depend on the, you can say, fire load, but classification of building as per NBC. A to J type. It is Okay, what is A? Res- A for resident, residential. Residential. B, Educational. C, Institutional. D, Assembly. assembly, E, Business. business, F, Mercantile. G. storage. Storage. Okay. Last is hazardous. I होता है? No, it's for No, industry. no. Is for J. I is missing J. Yes, that is very important. J. What is J? Hazardous. Okay. So most of the people might aware. तो आप कोई भी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो पहले से आप डिसाइड तो करके ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना रेजिडेंशियल बिल्डिंग आपने बनाई और कल से उसको वेयर हाउस बना दोगे आप। होता भी ऐसा नहीं है। मर्केंटाइल आपने बनाया, मर्केंटाइल में बाद में क्या हुआ, किसी का वो मॉल, शॉपिंग मॉल फेल हो गया, नहीं चला, तो किसी को हायर पे दे दिया एज ए वेयर हाउस, या आपका जो स्टॉक को स्टोर करने के लिए यूज कर रहा है। इफ they are using that, it means they are changing the fire load. Entire fire load calculation will change, and as per the new calculation they need to define the fire safety review audit, later on the system gaps, which type of fire protection is required, mention in table number, which table state about the fire system requirement, कौन सी टेबल में लिखा है, क्या चाहिए आपको, कौन सी बिल्डिंग के लिए। Table number 7. वेरी गुड। अब हम आते हैं, फायर लोड इज ए मेजर क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ फॉलोइंग। फायर जोन। व्हाट इज फायर जोन? कैन एनीबॉडी टेल हाउ मेनी फायर जोन आर डिफाइंड इन एनबीसी? 0, 1 and 2. Zone 0, Zone 1 and Zone 2. It is as per the hazardous industry classification, or you can say hydrocarbon industry. Fire zone 1, 2 and 3, sir. Very good. Because planning and development authority is there. Before you think buildings are erected, industries are coming up, you might be think कैसे इसको देते होंगे, ये बिल्डिंग यहाँ क्यों आ गई, ये मॉल वहां क्यों बन रहे हैं, ये यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? Because as per the fire load, they have defined zone 1, zone 2, zone 3. As per their definition and fire load, the setup will be there. आगे हम उसको पढ़ेंगे। अब जोन 0, 1, 2 की बात करते हैं हम, तो that is for installation of electrical equipment in hazardous area. ठीक है, वो भी आपने जिसने बोला है इंडस्ट्री में जोन का मतलब वो भी होता है, और वो होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन। हाँ बोलिए सर। वो जोन 1, 2, 3 का जो है वो टाउन प्लानिंग के परव्यू में आएगा ना वो? हाँ, वो अपना बिल्डिंग वाली जो बात करेंगे, साइट सिलेक्शन तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है आपका। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलिए, या कहीं हुडको, यूडको, ऐसे ऐसे नाम है ना उनके। तो आपका गांधीनगर में है, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद में, तो गांधीनगर में आपका अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। सूरत का अलग होगा, है ना। सूरत में डिफाइन किया गया, मान लो कि 70 मीटर के ऊपर बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो इसीलिए डिफाइन किया गया, दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू फाइट और रेस्क्यू द फायर बियॉन्ड 70 मीटर। उनका हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म उन्होंने इसी हिसाब से डिजाइन किया है कि वो 70 मीटर तक ही अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो डेवलपमेंट प्लानिंग का ही पार्ट है वो। ठीक है, यस सर, थैंक यू। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब ये फायर लोड एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिल्डिंग बनने के टाइम पे। आप तो सोचेंगे कि फायर लोड मतलब कंबस्टिबल मटेरियल में ढूंढूंगा, उसको केजी में वेट करेंगे, क्लोरिफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे फ्लोर एरिया से, तो फायर लोड आ गया। लेकिन बिल्डिंग बनने से पहले फायर लोड का पूरा हिसाब किताब कर लिया जाता है। उसी हिसाब से बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन किया जाता है। किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है बिल्डिंग का? टाइप 1, 2, 3, 4 पढ़ा है आपने? टाइप 1 बिल्डिंग, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ना सर? हाँ, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी फायर लोड के हिसाब से ही डिफाइन कर लिया जाता है। यस। टाइप 1 क्या होता है?
द बिल्डिंग और द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग ए फायर रेजिस्टेंस रेटिंग ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए जिसमें फायर को रजिस्ट करने की क्षमता हो। टाइप 2 मतलब जिसमें 3 घंटे की हो, टाइप 3 मतलब जिसमें 2 घंटे की कैपेसिटी हो, टाइप 1 मतलब 1 आवर। और आप टेबल जब देखेंगे तो उस टेबल में कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि इस एरिया में टाइप 3 और 4 बिल्डिंग अलाउ है, इस एरिया में टाइप 3 अलाउ है, इस एरिया में टाइप 1 अलाउ है, इस एरिया में टाइप 1 अलाउ नहीं है। वो भी एनबीसी में स्पेसिफाई लिखा गया है, स्पेसिफिकली लिखा गया है। तो हमारा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के बारे में मैंने आपको एक जनरल बात बताई है। अब बिल्डिंग तो आप बोलेंगे कि 4 आवर्स का रेटिंग एंश्योर करने के लिए क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद आएगा बिल्डिंग मटेरियल, कि बिल्डिंग मटेरियल आप कौन सा यूज करेंगे, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए कितना होना चाहिए, नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या होना चाहिए। तो वो एक डिटेल डिस्कशन है, वो एक एनबीसी का कभी हम आगे चलेंगे तो वो उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। पोटेंशियलिटी, हाँ बोलिए। फायर जोन में भी हम टाइप्स ऑफ बिल्डिंग आती है ना, जैसे जोन 1 में कौन कौन सी बिल्डिंग आएगी? यस, वो इसलिए बनाया ना कि आपका जो जोन 1 में कौन सी वाली बिल्डिंग अलाउ करेंगे हम, जोन 2 में कौन सी बिल्डिंग रहेगी, जोन 3 में कौन सी रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी, है ना। जैसे आपका सेस्मिक जोन होता है ना, सेस्मिक जोन फिर एक अलग बात आ जाती है कि ये जोन तो हमने फायर लोड के हिसाब से बनाया। अब आपका ज्योग्राफिकली जियोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से, हाँ, भूकंप होगा तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। जैसे जामनगर की रिफाइनरी है, वो उसको 8.5 या समथिंग 7.5 रिक्टर स्केल पे बनाया गया है, तो वो पहले से ही उस एरिया की जानकारी ले लेते हैं। आपका जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट होता है वो बता देता है अभी लाइटनिंग अरेस्टर चाहिए या नहीं चाहिए, तो लाइटनिंग वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है लाइटनिंग होने की, तो वो सारी चीजों का कैलकुलेशन करके भी ये चीजें सजेस्ट की जाती है। वरना कई लोग ऐसे होते हैं बोले लाइटनिंग अरेस्टर होना चाहिए, तो उसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पे लाइट को, आइए और मेरे को चेक करिए मैं ठीक हूं क्या, जबकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। वो 100 साल में एक बार गिरने वाली है, तो जरूरी नहीं है आपके घर में ही 100 साल में एक बार गिरेगी, वो पड़ोस में भी गिर सकती थी, लेकिन आपने उसको इन्विटेशन दिया लाइटनिंग अरेस्टर लगा के कि कम एंड टेस्ट मी, लेकिन आपने लाइटनिंग अरेस्टर ठीक ठाक नहीं रखा, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नीड ऑफ अमाउंट ऑफ फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। अब फायर लोड ही आपको बताएगा कि आपको किस लेवल का फायर प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन लेवल किस तरह के होने चाहिए। प्रोटेक्शन में सभी आ गया, पैसिव, एक्टिव, वो सारे पार्ट आ गए हैं प्रोटेक्शन में, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस, ये क्या होता है आजकल, ये चीज नहीं है लेकिन मैंने जानबूझ के लिखी है आपके लिए। पहले टैरिफ एडवाइजरी कमेटी थी तो वो रिबेट देती थी आपको इंश्योरेंस करने में, लेवल ऑफ फायर प्रोटेक्शन आपने कैसा मेंटेन किया है उस हिसाब से, लेकिन वो एबॉलिश हो गई बहुत साल पहले। लेकिन आज भी इंश्योरेंस कंपनी कोई अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है तो आपके एसेट का लॉस के लिए या कोई फायर या डैमेज के लिए इंश्योरेंस तभी करेगी जब आपका सिस्टम डिजाइन इस प्रकार का हो और वहां प्रोटेक्शन लेवल, डिटेक्शन लेवल और बाकी के सारे मैकेनिज्म वो चेक करते हैं, उस हिसाब से आपको प्रीमियम देते हैं। अब आप बोलेंगे मैंने तो सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ अच्छा है, तब भी प्रीमियम तो मुझे इतना देना पड़ रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको भी इतना देना पड़ रहा है। ये डिपेंड करता है इंश्योरर के ऊपर, आज नहीं तो कल वो फंसेगा, आज नहीं तो आपको कल नुकसान होगा। एक इंश्योरेंस आप थर्ड पार्टी ले लीजिए कार का और एक इंश्योरेंस आप वैसा वाला लीजिए। थर्ड पार्टी कितने में हो जाता है कार का इंश्योरेंस और वो वाला कितने में होता है, डिपेंड करता है कार की वैल्यू, वो बात अलग है, लेकिन 10 टाइम 8 टाइम का फर्क पड़ता है उसमें भी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, यूज ऑफ फायर लोड कैलकुलेशन। यूजेस टू कैलकुलेट वाटर डिमांड, जो मैंने आपको पहले बताया था फैक्ट्री एक्ट में A+B+C+D डिवाइडेड बाय 20, वो प्लस हम भी जो कर रहे हैं फायर लोड कैलकुलेशन, क्लेरिफिक वैल्यू इनटू कंबस्टिबल मटेरियल डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया इन मीटर स्क्वायर, उसका भी फर्क है। हाँ बोलिए। उसमें डी की कोई डेफिनेशन नहीं, डिफाइन नहीं किया हुआ है ना उसमें। नहीं, मैं इससे कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको 2 तरीके के फायर लोड कैलकुलेशन बताए। वाटर कैलकुलेशन जब फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से आप अपना प्लान सबमिट करने जाते हैं तो फैक्ट्री में जो डायरेक्ट डिश है जो वहां पे वो A+B+C+
डी डिवाइडेड बाय 20 का फार्मूला के हिसाब से टोटल पानी कितना चाहिए आपको वो देखता है। बाकी इंडस्ट्रीज में वाटर कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे एक हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री है मान लीजिए, तो उसका टैंक है, तो टैंक में वाटर डिस्चार्ज उसका शेल को कवर करने के लिए कितना लीटर पर मिनट पर स्क्वायर पर मीटर इस तरह से चाहिए होता है। पंप है तो नॉर्मल पंप है 10.2 चाहिए उसके लिए एलपीएम पर मीटर पर मिनट स्क्वायर। हायर पंप है तो 20.4 चाहिए। तो ये सारे नंबर ऑफ पंप आप काउंटिंग करेंगे, उसका वाटर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके ऊपर 10% फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशिंग मीडिया एक्स्ट्रा हम लेके फिर वाटर डिमांड कैलकुलेशन आती है ओवरऑल, है ना। तो वाटर डिमांड और स्टोरेज, अब मान लीजिए आप एक सिंपल एग्जांपल है ओआईएसडी के हिसाब से जाते हैं तो वो किस कैटेगरी में फॉल होता है, तो आपको 4 घंटे का स्टोरेज चाहिए, 3 का चाहिए, 2 का चाहिए। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में आपकी टेबल डिफाइन की गई है, बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने पंप होने चाहिए, उन पंप का डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, सब देखा है ना आपने टेबल में। टेबल 7 पढ़ा है ना सबने ध्यान से, नहीं पढ़ा है तो आज जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एंड फायर फाइटिंग ऑपरेशन इन बिल्डिंग, पोजिशनिंग ऑफ डिस्चार्ज नोजल, फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। अब कितने नोजल लगेंगे फायर फाइटिंग करने के लिए आपको, वो भी आपको एक कैलकुलेशन पता चलता है उससे। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ डिटेक्शन सिस्टम, किस प्रकार का डिटेक्शन सिस्टम चाहिए आपको, वो कैसे पता चलेगा, फायर लोड से। फायर लोड में क्या चीज होंगी, जलने वाला क्या पदार्थ है उसके हिसाब से। मान लीजिए आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, तो डिटेक्टर अलग रहेंगे। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के लिए डिटेक्टर अलग रहेंगे। ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट रहेगा। अरेंजमेंट ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था वेंटिलेशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है लाइफ सेफ्टी और फायर प्रिवेंशन एज वेल एज फायर फाइटिंग ऑपरेशन का। फ्लैश ओवर, बैकड्रॉट और छोटी फायर बड़ी फायर में कन्वर्ट हो जाती है अगर आपने गलत वेंटिलेशन का मैकेनिज्म यूज कर लिया तो। इंजरी हो सकती है फायर फाइटर को, जो ऑक्यूपेंट्स वहां रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, अगर आपने गलत टाइम पे वेंटिलेशन कर दिया, आपने विंड डायरेक्शन देखा नहीं और खिड़की वहीं से खोल दी जहां से विंड आ रही है, जो आदमी सुरक्षित थे, वेंटिलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से केवल CO गैस का ही खतरा था, अभी उनको फुल आपने ऑक्सीजन सप्लाई दे दी, तो उस एरिया में भी फायर एनगल्फ हो गई, है ना। टू रजिस्ट फायर स्प्रेड एंड ग्रोथ, अब क्या है कि फायर आपको लोड पता चल गया। अब लोड पता चलने के बाद आप क्या क्या प्रावधान करेंगे, व्हाट मैकेनिज्म और व्हाट आर द प्रिकॉशन और लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यू आर गोइंग टू एनहेंस। समझ लीजिए एक एग्जांपल है टू रजिस्ट द फायर स्प्रेड, इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, एनीबॉडी? टू रजिस्ट फायर स्प्रेड, इसके लिए मुझे काम करना, वेरी गुड। सो कंपार्टमेंटेशन की आपको टेबल में जाके देखना पड़ेगा कितना स्क्वायर मीटर पे कितने कंपार्टमेंटेशन होने चाहिए, है ना। शायद आपने गांधीनगर में जो मैंने क्लास ली थी स्टेज पे, जब आपको मैंने बताया था कंपार्टमेंटेशन, स्मोक बैरियर कैसे होते हैं, जो लाइटिंग फिक्सचर स्टेज पे लगे रहते हैं उनमें कंपार्टमेंटेशन क्यों किया जाता है, ताकि सडन स्मोक आपका पूरे हॉल में ना फैल जाए, वो वहीं कंटेन रहेगा, ट्रेवल करेगा वन कंपार्टमेंट टू अदर लाइकवाइज। एंड ग्रोथ, और फायर का ग्रोथ कैसे हो रहा है, ठीक है। टू अवॉइड कोलैप्स, अगर आपने रेजिस्टेंस फायर लोड कुछ भी नहीं किया है तो क्या होगा, सडन कोलैप्स हो जाएगा। आपने कोई बिल्डिंग है, MS का कोई स्ट्रक्चर है, तो उसका 75% जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पहुंचता है तो लूज कर देता है, वो बक्कल होने लगेगा, है ना। इसीलिए आपने कॉलम देखे होंगे, तो RCC कॉलम क्यों बोला जाता है, कॉलम का कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितना उसका वो होना चाहिए डिटेल, वो हमारा टाइप 1 2 3 4 में डिफाइन किया गया है। तो उसमें आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का कितना होना चाहिए, नॉन लोड बियरिंग का क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डिमोलिशन, क्रैक ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग। ये एक मैं आपको शेयरिंग करूंगा, व्हेन आई वाज इन सूरत SR Steel India, I have witnessed a major fire in 16th floor building. Firefighting started morning 8 or 9 in between, and it till on late night. But during you can say about 1 से 2 बजे के बीच में फायर टेक्सटाइल, पूरा मटेरियल टेक्सटाइल ही था, सिंथेटिक। सो उसका प्लस्तर जो है जगह जगह से ऊपर से टूट के गिरने लगा,
तो अगर आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर और आपने जो बिल्डिंग बनाई वो स्ट्रक्चर क्यों टूट रहा था, फायर रेजिस्टेंस की वजह से नहीं टूट रहा था। रेजिस्टेंस एज पर नॉर्म्स बनाया गया था बिल्डिंग का, लेकिन जो आप पानी मार रहे हैं बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए, तो उससे भी एक फर्क पड़ता है उसका, वो अपनी स्ट्रेंथ पहले लूज कर सकता है। अगर आपने एक्सेस वाटर अप्लाई कर दिया, गलत जगह वाटर अप्लाई कर दिया, जेट प्रेशराइज आप कर रहे हैं, तो प्लस्तर तो वैसे भी आग भी नहीं लगी होगी तो आप प्रेशर जेट से मारेंगे तो निकल जाएगा वो तो। लेकिन फायर के केस में बहुत जल्दी होता है क्योंकि स्वेलिंग आती है उसमें। जब अंदर तो क्या है, हॉट सरफेस है, और बाहर क्या है, कंपेरेटिव टू कोल्ड है। सिंपली आपने एग्जांपल लिया हुआ, एक टीन का डिब्बा लीजिए, गर्म कीजिए, उसमें पानी डालिए तो क्या होगा, पिचक जाएगा ना ठंडा पानी से। तो क्रैक एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, सो प्रिपेयर फायर रिपोर्ट। लास्ट में आपको फायर रिपोर्ट एक बनाने का मौका मिलता है ये स्टडी करने के बाद, कि आपको फायर लोड कैलकुलेशन, अभी आपको कोई बोलेगा मेरा फायर लोड कैलकुलेशन कर दीजिए, कई लोग बोलेंगे ठीक है मैं 10,000 में कर देता हूँ। मेरे पास आएंगे, मैं बोलूंगा मैं तो 1 लाख लेता हूँ कैलकुलेशन के, तो वो बोलेंगे हमें तो 10,000 में करके दे रहा, आप 1 में क्यों करके दे रहे हो। तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, मैन आवर कितने जाएंगे, एरिया कितना बड़ा है, ड्राइंग क्या है उनकी, प्रोटेक्शन लेवल कितना है, ये सारी स्टडी करने के लिए साइट पे जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। एक आप ईमेल पे आप मुझे ड्राइंग भेज दीजिए, 10,000 में बना के भेज देंगे कुछ भी। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्वालिटी ऑफ ऑडिटर। अभी आपको ये जो कोर्स कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है, सर्टिफिकेशन। हर ऑडिटर एक ही जवान बोलेगा, जो आज मेरी बात सुन रहा है या आने वाले लेक्चरर की बात सुनेगा, या जो पढ़ रहा है आपकी इस यूनिवर्सिटी में, जीएसएफसी की जो यूनिवर्सिटी है, वहां को सबको जितने भी ऑडिटर बन के निकलेंगे सब एक जैसे ही निकलेंगे। अब ऐसा मत बोलिएगा आप सचिन तेंदुलकर आगे चला गया, विनोद कांबली तो पीछे रह गया ना, गुरु तो एक ही था, वो अलग बात है, ठीक है ना। सो मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? यस सर, Am I audible? यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, मेरे सामने स्क्रीन है, आपका चेहरा नहीं है, तो आपको बीच में अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो अभी तक हमने जो बात की उसमें किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। पूछना है किसी ने? नो सर। ओके। अब डेफिनेशन ऑफ फायर लोड बहुत बाद में आई है, वो पहले हम बात कर चुके थे। क्या है वो? फायर स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन दे सकते थे, लेकिन पहला अगर डेफिनेशन ये दे दिया जाता तो आप सोचते फायर लोड पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना सही तो है ये तो हर कोई कर लेगा, सिंपल है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, उसके बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड को आप पहले बताया गया। जैसे पहले आप बचपन में हमने निबंध लिखते थे तो क्या लिखते थे, परिकल्पना लिखते थे ना, प्रीमिएबल, ताकि आपको समझ पाए कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। द फायर लोड इज द टोटल एनर्जी ऑफ वूल कंटेंट इन ए स्पेस इंक्लूडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द फेसिंग ऑफ द वॉल, पार्टीशन, फ्लोर एंड सीलिंग। ये सारी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। फायर लोड का ऐसा मतलब नहीं है कि जिस कमरे में मैं बैठा हूं, एक टेबल है, एक कुर्सी है, एक बेड है, उसको गिनती कर लिया मैंने, दीवार में मैंने क्या लगाया है, सीलिंग में क्या लगाया है, फ्लोर में क्या लगाया है मैंने, कर्टन कहाँ लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजों जो मटेरियल है सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू आती है आपकी जो दिखा रखा है किलो जूल में। और अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, FL आप देखेंगे तो ये FL क्या है, फायर लोड। ये आपको समझ में आता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, ये सिंबल क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, बहुत सी चीजों को आपको जोड़ने के काम में आता है। जैसे एक्सेल शीट में आप ऊपर से पकड़ते और पूरा नीचे खींच देते तो एडिशन आ जाता है ना, समेशन। हाँ। तो अभी मान लीजिए आपको किसी रूम का लोड कैलकुलेशन करना है, वहां 100 किलो लकड़ी है, 100 किलो रबर है, 150 किलो PVC है ना, और कॉटन क्लॉथ है इतना। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको, M मतलब उसका वेट इन केजी इनटू उसकी टेबल में, जब आप जाके देखेंगे NBC की टेबल में हर एक चीज का क्लोरिफिक वैल्यू लिखा गया है, पेपर का कितना है, रबर का कितना है, हाइड्रोकार्बन का कितना है, सब लिखा है। उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ते जाना है, फिर सबको जोड़ देना है
तो आपका फायर लोड आ जाएगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं M1 इंटू C1 प्लस M2 इंटू C2 डैश 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 डैश, ये आखिरी तक चला गया। अब इसको डिवाइड कर देना है फ्लोर एरिया से, जिस रूम का आप लोड निकालने वाले हैं। मान लीजिए आप अपने 3 BHK का फायर लोड निकालने वाले हैं, मैं आपको एक दूंगा एक्सरसाइज, फायर लोड कैलकुलेशन आपके एरिया की मुझे चाहिएगी, जहां जहां आप रहते हैं। मैं देखता हूं कैसे करेंगे आप, कैसे कर पाते हैं। फिर मैं आपको एक मेरा एग्जांपल दूंगा, जो मैंने जब पिछली कंपनी में था, मैंने फायर लोड कैलकुलेशन पूरा खुद ने ही किया था। व्हेन आई वाज इन SR Steel India Limited 6 years ago I was there. So we have done an entire fire load calculation, क्योंकि उस समय इतना फायर लोड कैलकुलेशन के एक्सपर्टाइज लोग थे नहीं, और उनका जो एक्सपर्टाइज हमको आ रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, आप ड्राइंग भेज दीजिए, मेल पे दे देंगे। कोई बोल रहा था हम इतने में दे देंगे, उतने में दे देंगे। और अगर आप NFPA के हिसाब से कैलकुलेशन कराएंगे ना स्टोरेज टैंक का, 1 टैंक विल कॉस्ट यू मोर देन 6 लाख 8 लाख, और 100 टैंक है आपके पास मान लीजिए। सो बेसिक डिपेंड क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जरूरी नहीं है आप एज पर NFPA आप कराएं, या हो सकता है आपकी इतना आपका सोच है कि नहीं मुझे तो एज पर NFPA ही कराना है, लेकिन NFPA के कैलकुलेशन के बाद उसमें जो प्रोटेक्शन मेजर है वो लगाने के आपके पास प्रोविजन भी होनी चाहिए, आगे की प्लानिंग भी होनी चाहिए। प्लानिंग नहीं है तो नो इशू, आप डॉक्यूमेंट बना के रखिए, जब कभी अच्छा समय आएगा तो आप इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी बनी तो आप तब भी कर सकते हैं। ठीक है। फायर लोड एज पर NBC, देखिए वही था जो मैंने आपको बताया, कंबस्टेबल मटेरियल इन kg, क्लेरिफिक वैल्यू इन किलो कैलोरी पर kg, फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हीट रिलीज रेट। आपका हीट रिलीज रेट क्या है? जो क्लास में लोग बैठे हैं उनका हीट रिलीज रेट पता चला कभी आपको? क्या होता है हीट रिलीज रेट? Heat release HRR in comparison to, you can say, fire or combustible material or fire load, the rate at which fire releases energy। आप अपनी एनर्जी रिलीज कब करते हैं, कितनी करते हैं? सोते समय आप कितना करते हैं? जब कभी किसी के साथ हॉट आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? तो ये क्या है, हीट रिलीज रेट फायर का भी है। फायर का हीट रिलीज डेल्टा E डिवाइडेड बाय डेल्टा T इन वॉट्स में आता है वो। और इसका बेनिफिट क्या मिलता है हीट रिलीज रेट का, जनरली आदमी नहीं समझ पाएगा। कि आप बोलेंगे फायर फाइटर को, या जो आदमी ऑपरेशन के लोग हैं, या जो ऑक्यूपेंट हैं, उनको क्या बेनिफिट है हीट रिलीज रेट का? पता करके क्या हो जाएगा उसका, है ना? तो हीट रिलीज ऐसा है कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। व्हेन आई वाज इन रिलायंस, we have a software that is Shell Safford PIPA, प्री इंसिडेंट प्लानिंग एंड असेसमेंट। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कोई कॉलम है, उसका फ्लैंज से लीकेज हुआ है, तो कितने mm का लीकेज हुआ है, डाउन विंड डायरेक्शन, अप विंड डायरेक्शन में कितना फ्लेम का लेंथ रहेगा, कितना उसका इंटेंसिटी रहेगा, और हीट रिलीज कितना रहेगा। तो उसमें हीट रिलीज को क्या करते थे कि एक तो फायर फाइटर के लिए बेनिफिट के लिए, कि फायर फाइटर का बॉडी कितना रेजिस्टेंस कर सकता है, कितनी हीट को, उस हिसाब से लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उसको देना है। साथ ही साथ जो फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं वो ऑलरेडी ईयर मार्क रहते थे, उनके ऊपर पहले से उनको चिन्हित करके रखा जाता था, आइडेंटिफाई करके रखा जाता था। विंड डायरेक्शन जब नॉर्थ टू साउथ रहेगा या साउथ टू ईस्ट रहेगा, तब ये वाले इक्विपमेंट आपको यूज नहीं कर पाएंगे ड्यू टू हीट रिलीज रेट। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी, 3 कैटेगरी रहती है उसमें। अब आप देखिए एक एग्जांपल, तो कोई पार्टिसिपेंट मेरे लिए पढ़ के बताएगा कैलकुलेशन फर्स्ट वाला एग्जांपल, ताकि मैं समझ पाऊं, आपको समझ में आएगा। एनीबॉडी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। हाँ, तो हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, 7:40 तक करते हैं। A storage room has 100 kg cellulose material
what are the average HRR during a fire accident which lasted for 45 minutes? जो स्टोरेज Yes. रूम में 100 kg मटेरियल्स है, हाँ, कौन सा है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मटेरियल है, तो क्या किया फिर इन्होंने नीचे? फायर लोड हाँ जी, and fire load into fire load is equal to 100 into 17.6. हाँ, 17.6 कहाँ से लाया सर? एमजे में आ गया, एमजे को किलो जूल में कन्वर्ट किलो किया, जूल में, ओके ओके, किलो जूल में कन्वर्ट किया, है ना, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, फिर आपको हीट रिलीज रेट चाहिए, उसने दिया है 45 मिनट तक आग लग रही है या चलने वाली है, तो मिनट को आवर्स में चेंज कर लिया, क्योंकि किलोवाट पर आवर हो गई है आपकी हीट रिलीज रेट, है ना। अभी दूसरा एग्जांपल कौन पढ़ के बताएगा? हेलो। हाँ बताइए। A storage room has 10 kg wood. C is equal to 19 mj per kg. 15 kg gasoline. C is equal to 44 millijoule per kg. And 60 kg diesel. C is equal to 41 millijoule per kg. What is the total energy that can be released during a fire in this compartment? What will be the average HRR if a fire lasts for at least for 30 minutes after an accident? ओके, तो अभी तो आसान हो गया ना आपके लिए सब कुछ ही। फायर लोड तो आप भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप फायर लोड किसी का निकालने जाएंगे तो आपको पता करना पड़ेगा ये सोफा जो है, सोफा कितना किलो का है। अब सोफे के अंदर जो लकड़ी है वो कितने किलो होगी, और जो उसके ऊपर रेक्सिन लगाया है वो कितना किलो होगा। तो ये एक थोड़ा टफ जॉब है। तो यू कैन से आप अंदाज से उस चीज पर पहुंचेंगे। सोफा है, अगर आपको पता है नया है, किससे लिया है, तो बात अलग है। अब आप ऑडिट 10 साल करने जा रहे हो, 10 साल से पहले सोफा लिया था तो उसको नहीं पता होगा किसने दिया था। लेकिन आपकी आंखें इतनी बारीक होनी चाहिए, जैसे फायर फाइटर, फायर ऑफिसर क्या होता है, फायर वाटर नेटवर्क की लाइन को आंख से ही नाप लेता है कितने इंच की लाइन है, कर लेता है ना। वो एक्सपर्टाइज धीरे धीरे आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है फायर लोड एज पर NFPA 557। ये लंबा चलने वाला है अपना सेशन NFPA 557 पे, ठीक है। तो इसके ऊपर जाने से पहले ये देखिए फायर लोड कैलकुलेशन का क्या है। लो फायर लोड आपने जब कैलकुलेशन कर लिया तो 275,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप BTU में लेंगे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये लो फायर लोड, मॉडरेट, हाई, ये चीजें आपको लास्ट में आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो NFPA 557 की आगे की होने वाली क्लास हैं वो उनमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मिस्टर अजीत, आर यू ऑनलाइन? Yes, sir, I'm here. Do we have time or we can stop here? Yes, sir, if you want to stop, then we can stop, or else we can go for another 10 minutes. Okay, we can go another 10 minutes, na? Yes, sir, yes. Okay. So the total energy content of combustible material in the building space or area, including finishing and content and combustible building element, expressed in MJ. The fire load for design basis fire shall be determined by combination of all the following: statistical distribution of the fire load in building। किस तरीके, स्टैटिक्स पढ़ा है ना आपने थोड़ा बहुत, संगणक क्या बोलते हैं उसको बचपन में आपने पढ़ा होगा ना। स्टैटिक्स पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, कोई बात। तो हम स्टैटिक्स, आप सुनते तो होंगे ना शब्द, स्टैटिकल, स्टैटिक्स ऑफ मार्केट, स्टैटिक्स ऑफ फायर, है ना। तो वो किस तरह से, हाँ, तो उसका कहने का मतलब है आंकड़ों के हिसाब से और ये कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्डिंग का लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है वो बारे में बोल रहा है। फायर इनिशिएशन फ्रीक्वेंसी, फायर इनिशिएशन फ्रीक्वेंसी इंडिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी,
लेकिन एनएफपीए ने क्या है डिफाइन किया हुआ है। क्यों डिफाइन कर पाए वो, इंडिया में हम क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे? क्योंकि अब्रॉड में ईच एंड एवरी फायर इंसिडेंट का डेटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, एनालिसिस होता है, स्टैटिक्स निकाली जाती हैं। फायर आपका जो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल्स में मिलियंस ऑफ हॉस्पिटल में फायर होने की फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे ओआईएसडी में आपने पढ़ा है टैंक फायर होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 × 10⁻⁻⁻⁹ ऐसा पढ़ा है आपने कभी किसी ने? तो वो क्या है, उन्होंने इतने साल, इतने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टैंक फायर हुई, मान लीजिए सरफेस टैंक, फुल सरफेस टैंक फायर कितनी हुई, तो देखने में तो ऐसा लगेगा 3 × 10⁻⁻⁶, ये तो हो ही नहीं सकती, हुई नहीं होगी, लेकिन तो होती हैं टैंक फायर, तो हो ही रही है। वो एक जानकारी के लिए आपको एक डेटा, जो कितने नंबर ऑफ टैंक्स होंगे पूरे वर्ल्ड में, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इतना 0.00000 भी 3 भी आता होगा तो भी बहुत बड़ा है वो, और कहीं ना कहीं हो ही जाती है वो। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी एनएफपीए में मैप की गई है कि आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए फायर इनिशिएशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, रेजिडेंशियल के लिए कितनी होगी, इंस्टीट्यूशन के लिए कितनी होगी, डिफरेंट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसमें डिटेल में जाएंगे। इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फायर प्रोटेक्शन मेजर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फायर कंट्रोल इन द अर्ली स्टेज ऑफ फायर। अब इंडिया में कहीं भी इस तरह का आपको एनवीसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं कि फायर लोड के हिसाब से, बिल्डिंग के हिसाब से उन्होंने लिख दिया कि क्या लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होना चाहिए, बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से लिख दिया, ऑक्यूपेंसी के हिसाब से लिख दिया, लेकिन जो इनिशिएशन, फायर इनिशिएशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एनएफपीए ने कुछ डिफाइन किए गए किस बिल्डिंग में किस तरह के सिस्टम आपको चाहिए, कहां आपको डिटेक्शन सिस्टम चाहिए, कहां नहीं चाहिए, कहां आपको डिटेक्शन विद स्प्रिंकलर चाहिए, कहां डिटेक्शन विदाउट स्प्रिंकलर चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एज पर एनबीसी मैंने आपसे सुन ही लिया था, आपने लगभग सही बताया था। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग का एक मैंने रखा था स्लाइड, वो तो आपसे ही मैंने पूछ लिया डिटेल में। हम इसको आगे एनबीसी में कभी मौका मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन, एक टेबल जो है क्लेरिफिक वैल्यू का टेबल आपको दिख रहा है ये साइड में, जो मैंने पूछा पेपर में कितना क्लेरिफिक वैल्यू होना चाहिए, ये सारी टेबल में दी हुई है एनबीसी में आपको, टेबल 9। ठीक है, तो आज हम यहीं मेरे ख्याल में क्लोज करते हैं। ठीक है, तो फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे। अभी ओके सर। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं, बताइए, कुछ पूछना है आपको? एक बार फेस टू फेस हो जाता। Sir, please unmute yourself, sir. Hello, sir. बोलिए। जिगर, आपको मैंने कहीं देखा है ऐसा लग रहा है, आप बीएससी फायर सेफ्टी हैं क्या साणंद से? जिगर जोशी, आपका Joshi sir, you can unmute yourself. Unmute yourself. जिगर आपका क्वालिफिकेशन बताएंगे? Yes, sir. Sir, I am by basically I am electrical engineer and pursued post diploma industrial safety course, sir. Okay, because by seeing your face I come to know one of Jigar, I come to know. Please introduce yourself. आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। Presently, sir, I am working with Kalpataru Power Transmission and I am taking care of EHS department, sir. Okay, nice. Please, Girish, can you? Yes, sir. Myself, Girish Upadhyay, BE Electrical in from Surat, and Safety Service Surat, Safety Bazaar, Surat. And I did FSO by GIDM. Okay. We have met there. Previous We have met there. number 3. Fire protection system. Yes. Yeah, please. Anybody can share about him? Yes, Girish. myself.
Myself, Sailesh Patel, Yes, BSc, sir. and post diploma in industrial safety and FSO advance Okay, great, sir. from Great. Ahmedabad. Very good, very good. And who is Trushit Patel and Girish Upadhyay? Sachin. Yes, sir. Myself, Sachin Patel. I have did my BSc Fire in second batch, and also advanced diploma industrial safety, NIBOS IGC, NIBOS PSM, and I have total 16 years experience in EHS. Okay. And then, yeah, presently working with PI industry, Jambu sir. Okay, okay. Yeah, Mr. I Chauhan. am the batchmate of Ratnadeep Trivedi. Okay, okay. Ratnadeep. Yes, sir. Yes, sir. And I have also attended your many lectures in last year, May, June, through Okay. this online. Okay, okay. Nice Yes, to hear you. Nice. yes. Thank you. Okay, can you say a few words about you? Yes, sir. Myself, Prithviraj Chauhan, currently working as a lead fire at PI Industries Limited. And earlier I was in Reliance. Yeah, Reliance Jamnagar. yes. Okay, okay. And Chauhan Rishi Raj. Chauhan Rishi Raj. Yes, sir. Myself, I am Prithviraj Chauhan, working as a lead fire in PI Industry. Okay. So thank you very much. Hi, sir. Good evening. Yeah, please, Tushar. Trushit, sir. Trushit, sorry. Myself, Trushit Patel. I have total 17 years of experience in field of EHS. I did MSc in organic chemistry, post diploma industrial safety, post diploma environment technology, and now I am working with MCOR Flexible India Private Limited as a EHS manager. Okay, okay. So what you are all looking for this after this course? What is your planning? Why you are taken admission in this course? Anybody can share? आपने सबने इतना अलग अलग वर्सेटाइल एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद भी इस ऑडिटर कोर्स में एडमिशन लेने की क्या जरूरत महसूस हुई आपको? ऑडिट तो आप कर ही रहे हैं, इंडस्ट्रीज में भी ऑडिट सालों से कर रहे हैं आप, तो इस कोर्स में आने की क्या जरूरत पड़ी? सर बेसिकली अभी जो है तो बहुत सारा मतलब इंसिडेंट और वो भी बहुत वो हो रहा है, और उससे क्या मतलब क्वालिफाइड जो है पीपल्स वो बेसिकली इंडस्ट्रीज में ही है, और इंडस्ट्रीज में जो है वो बाहर ऐसा एक्सपोजर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं. तो आई थिंक वी कैन गेट सम अपॉर्चुनिटी टू हमारे जो है एक्सपर्टाइज वो हम लोग बाहर भी शेयर कर पाएंगे. तो ये एक बेसिक इंटेंशन है ये कोर्स करने का. और उसके बाद में दूसरा ऑडिट का डेफिनेशन अगर आप देखो ना, तो ऑडिट इज ए सिस्टमाइज्ड अप्रोच. तो आप ऑडिट या आप हम सब जानते हैं, मुझे भी लगभग 25 साल हो गए इंडस्ट्रीज में. आई एम हैविंग ए 25 year of experience. 11 years 6 months I was in Ministry of Home Affairs as a inspector, sub inspector. I was there in ONGC, Hindustan Zinc, Bharat Heavy Electrical Limited. Later on, I have quit the job and joined the Reliance Refinery Jamnagar as a manager HACF. After that, I have joined the steel industry at Surat, SR Steel. I have worked there approximately 5 years, 6 months, and last 6 years, I am working in Adani Port. So, basic purpose of that course will be that your versatile experience you can contribute to society. और जैसे मैंने आपको बताया ना, फायर लोड कैलकुलेशन 10,000 में भी होगा, 10 लाख में भी होगा, 1 लाख में भी होगा, लेकिन किससे करवा रहे हैं? एक समोसा आप 2.5 रुपए का भी खाते हैं और वही समोसा आप 5 स्टार होटल में खाते हैं. यस सर, यस सर. समोसा ये आलू ही है, दोनों के अंदर हाइजीन का फर्क है, क्वालिटी का, अपीयरेंस का, प्रेजेंटेशन का, एम्बियंस का. तो ये कोर्स आपकी जितनी भी इंटरनल क्वालिटी जो इधर उधर फैली हुई पड़ी हुई है उसको सिंक्रोनाइज करके एक जगह लाएगा, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से भाग लिया इस कोर्स में और उसको यूटिलाइज किया. तो कल आप जिस रूम में आज बैठे हैं, हम अगले सेशन में आपसे आपके रूम का फायर लोड कैलकुलेशन देखेंगे. अपना एक्सेल शीट बनाइए और फायर लोड कैलकुलेशन करके कल आइए, देखते हैं कौन कहां तक पहुंचा. ठीक है? यस सर. ओके सर. आसान काम है, बहुत आसान काम है, लेकिन समय देंगे
तो सिस्टमेटिकल कराना है आपको, ताकि कल हमारा जो सेशन चालू होगा आपसे ही चालू होगा, मुझसे नहीं होगा। यू विल स्टार्ट वन बाय वन कि आपने फायर लोड कैलकुलेशन अपने रूम का, घर का मत करना, नहीं तो आप बोलोगे सर मैं तो रात भर सो नहीं पाया, घर में लगा रहा। केवल रूम का कर लेना आप बैठ के, ठीक है? तो एवरीबॉडी इज ओके विद दिस एक्सरसाइज? टुमारो वी विल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. इस रूम में आप बैठे हैं, फिर से सुन लीजिए, जिस रूम में आप बैठे हैं